Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry. As we are studying introduction to the environmental chemistry, and today in this chapter the topic of discussion is chemical species and particulate matter which is present in the atmosphere. This is going to be a relatively easy lecture as compared to the previous one, and a short one also. So definitely you are going to enjoy it. This presentation is submitted by Anna Robab. I think this is from the morning session, 124 roll number. So, environmental chemistry deals with the study of the sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in water, soil, air, and living environment. So, this is quite a comprehensive definition of environmental chemistry. So we are concerned specifically in this lecture with the chemical species and particulates present in the environment. So the various chemical species which are present in the atmosphere, they include ions, radicals, and particles. And we will go through these one by one. So first we are going to discuss about ions. So, as we are going to study about ions, first we will see in which region of the uh, atmosphere ions can be present. The regions in which ions are present, it is termed as ionosphere, right? तो वो वाला रीजन जिसमें आयंस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर के मुतालिक हमने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि आयंस किस तरह प्रोड्यूस हो सकते हैं और ये कैसे पैदा होते हैं, और इस लेक्चर में भी हम इसको स्टडी करेंगे. So ionosphere is the region of atmosphere that extends from 50 to 100 kilometers. So this is important from the MCQ's point of view. Ionosphere 50 to 100 किलोमीटर रीजन तक ये एक्सटेंड करता है. सो एप्रिसिएबल लेवल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस सच एज O2 प्लस. ये O2 देखें, ये 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए था. O2 प्लस, O प्लस, N प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन दिस रीजन. ठीक है, तो अब इसमें ये आयनोस्फीयर के अंदर यानी ये वाले आयंस, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. सो आयंस कंटिन्यू. इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, इस स्लाइड पे हम ये डिस्कस करेंगे. द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन is mostly responsible for the formation of ionic species in the atmosphere. So these are the UV radiations from the sun. During night times, when UV radiations are not present, then species again combine with electron to yield neutral species from which they are originally initiated. अच्छा, अब इससे हमें ये पता चलता है कि आयनोस्फीयर के अंदर बेसिकली न्यूट्रल स्पीशीज ही प्रेजेंट होती हैं, और दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी अमिट होती है एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रेजेंट इन द सन्स लाइट. तो अब उसमें जो यूवी रेडिएशन है वो इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती हैं, उनको आयनाइज कर देती हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देती हैं और पॉजिटिव आयंस क्रिएट करती हैं. तो अब दिन के वक्त यानी होंगे पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और रात को क्या होता है मोस्टली कि वो पॉजिटिव आयंस दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज बना देते हैं. So what are radicals which are present in the atmosphere? Radicals, actually these are group of atoms. Oh sorry, no, this is not about radical.
रेडिकल जो है इसमें हमारे पास ये ऐसी स्पीशी होती है, यस इट कैन बी ग्रुप ऑफ एटम बट इट विल बियर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा रेडिकल के ऊपर, क्योंकि आमतौर पे देखें हमें पता है या तो फॉर एग्जांपल ये अगर हाइड्रोक्साइड ये रेडिकल है और इसके ऊपर अगर नेगेटिव हो, इट मींस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये हाइड्रोक्साइड ये रेडिकल है, ये मिथाइल रेडिकल है, और इसी तरह ये सल्फर डाइऑक्साइड ये कार्बोक्सिलेट रेडिकल है, ये नाइट्रो, और ये फिर HCO रेडिकल है। तो रेडिकल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और दिस इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशी, and radicals in the atmosphere, these are mostly generated by photochemical reactions. Radicals are highly reactive, so by combining with other chemical species they can start chain reactions in the atmosphere. So these are highly reactive species. और इससे क्या होता है कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस लेयर में रिलीज हो जाए जहाँ पर ओजोन प्रेजेंट है, तो ओजोन की डिकम्पोजिशन के लिए ये चेन रिएक्शन ही होता है, और एक सिंगल क्लोराइड रेडिकल जो है 1000 और 1 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक सिंगल रेडिकल जो है ओजोन के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर सकता है। रेडिकल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। So this is actually photochemical smoke is another phenomena which are not going to discuss here, but radicals, these are also the part of photochemical smoke. Now the particulate matter, right? जो particle size है atmosphere में it varies from 0.1 to 1 micron. So this is quite a small size, but even then they are in the form of particles. Pure air contains several hundred particles per cm cube, whereas a highly polluted air contains several thousands of particles per cm cube. So this is the difference. यानी अगर कोई साफ शफाफ किस्म की हवा है तो इसमें पार्टिकल मैटर 100 के हिसाब से होगा पर cm क्यूब, और अगर कोई पोल्यूटेड एयर है, गंदी किस्म की हवा है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं पर cm क्यूब, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के प्योर एयर के अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल मैटर 100 पर cm क्यूब, हंड्रेड्स यू कैन से पर cm क्यूब, और इसमें थाउजेंड्स पर cm क्यूब होंगे। Then other particles they include aerosols, and these are the particles of colloidal dimensions. These are called aerosols. Colloidal particles जो हैं वो aerosols तश्कील देते हैं, जबकि particulates particles present in the aerosols, these are called particulates. असल में होता क्या है कि एरोजोल तो एक सस्पेंशन होती है ना, ठीक है, और जैसे दूध भी एक सस्पेंशन की एक फॉर्म है, तो एरोजोल जो है वो एयर में सस्पेंडेड यू नो यू कैन से गैसेस, और जो ज़्यादा डेंस हों, फ्यूम टाइप वो बना रही हों, और उन गैसेस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड हों। सो दिस विल बी लाइक पार्टिकुलेट मैटर in the suspension of air. This will constitute aerosols. Okay, so particles continue. Atkin particles, aerosols of natural origin having diameter less than 0.2 micron. These are called as Atkin particles, right? असल में इस मतलब लेक्चर में या ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें अच्छी टर्मिनोलॉजीज नई नई देखने को मिल रही हैं। खैर नहीं तो नहीं है, हो सकता है वैसे मैंने ये पहले भी पढ़ी हो, लेकिन एनीवेज जहन से तो अब निकल चुकी थी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैंने एमएससी में पढ़ा हुआ है और हमने अच्छा डिटेल से पढ़ा था, एंड आई एम हैप्पी नाउ आई एम एबल टू डिलीवर इट। तो ये जो एटकिन पार्टिकल्स हैं
तो इनका जो पार्टिकल साइज है इसका डायमीटर लेस देन 0.2 माइक्रोन है. दीज आर कॉल्ड एज एटकिन पार्टिकल्स. और वेरियस टाइप्स ऑफ एटकिन पार्टिकल्स इट इंक्लूड डस्ट, स्मोक, फोग, पोलन्स. ठीक है. और ये पोलन एनर्जी भी सॉरी एनर्जी नहीं एलर्जी, कई लोगों को ये पोलन एलर्जी भी होती है ना, तो उनको सफोकेशन हो सकती है इन पोलन्स की वजह से. यूरोपियन कंट्रीज में तो ये पोलन एनर्जी जो है सॉरी एलर्जी ये बहुत कॉमन है. तो आप ज़रा नेट पे सर्च करें ये पोलन एलर्जी क्या होती है. अच्छा, इसके अलावा जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इसमें ग्रेन्स, राइट. और इसके अलावा वॉल्केनिक ऐश, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो उससे लावा बाहर निकलता है. इसके अलावा ऐश भी उसके साथ होती है. या फिर जब चीज़ें जल जाती हैं तो ऐश वो बन जाती है लावा के बाहर निकलने से, वॉल्केनिक ऐश. इसके अलावा स्मॉल बैक्टीरिया, these are also present in Atkin particles of the atmosphere. Then now we have particulate matter. Particulate matter, I like actually this abbreviation PM. PM for Prime Minister or PM for particulate matter. Anyways, PM describes a wide variety of airborne material. PM pollution consists of materials including dust, smoke and soot. ठीक है. तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर वाली पोल्यूशन है इसमें कौन से मटेरियल होते हैं? डस्ट होती है, स्मोक. डस्ट और स्मोक से तो आप वाकिफ ही होंगे. अब ये सूट क्या चीज़ है? सूट जो है ये कार्बन रिलेटेड मटेरियल की जब बर्निंग होती है और उससे जो पीछे कार्बन बच जाता है वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्रिएट करता है और बेसिकली उसे ही हम सूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये मीथेन जो हमारे घरों में आती है और फिर खाना वगैरह पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं. और बर्त कई दफ़ा जब मीथेन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो नीचे से बर्तन ज़्यादा स्याह ब्लैक किस्म के हो जाते हैं. तो उसी उसी को हम सूट बोलते हैं ना, वही कार्बन होती है, राइट. तो यानी ऐसे कार्बन कॉन्टेनिंग मटेरियल के जब उनको बर्न किया जाए, इवन के दरख्त वगैरह भी जब जलाए जाते हैं उसके बाद जो ब्लैक मटेरियल बचता है दिस इज कॉल्ड एज सूट. एंड दे आर डायरेक्टली emitted into the air और result from the transformation of gaseous pollutants. ठीक है. अब देखें गाड़ियों के इंजन में जब पेट्रोल डलता है तो उसमें भी ज़ाहिर है कार्बन होता है और कुछ अनबर्न्ड कार्बन फ़ज़ा में भी डिपॉजिट हो जाता है. इसके अलावा क्या होता है कि जो गैशियस पोल्यूटेंट्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से भी सूट प्रोड्यूस होता है, डस्ट और स्मोक भी. पार्टिकल्स कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो पार्टिकुलेट मैटर है इसका जो दूसरा इसका सोर्स हो सकता है वो वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इंसिनरेटिंग वेस्ट एंड स्मेल्टिंग मेटल्स. अब ये इंसिनरेटिंग वेस्ट जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? असल में ये जो हाँ मेरे एक्चुअली फ़ौरन जहन में आया और फ़ौरन निकल भी गया और शुक्र है अल्लाह का फिर जहन में आ गया. अच्छा, इंसिनरेटिंग वेस्ट क्या होती है कि अर्बन एरियाज से जो कूड़ा करकट उठा के लेके जाते हैं, ठीक है, उसको जलाया जाता है एक्चुअली. ठीक. और उससे फिर जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं इंसिनरेटिंग वेस्ट. और उसको फिर अगर अच्छे तरीके से डंप ना किया जाए तो वो भी फिर पार्टिकुलेट मैटर उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं. इसके अलावा स्मेल्टिंग मेटल्स यानी मेटल्स की प्रोसेसिंग में भी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. So thank you very much for your attention. I like this presentation. It was good. I don't have to work on it very much. And thank you very much again for watching this video. Please like, subscribe and share. And we will meet with another topic in the next lecture. Till then,
अल्लाह हाफिज़।